हमेशा। Okay, today's technical lettering topic है week 2 session 2 technical lettering, introduction to the technical lettering. Technical lettering is a barren piece of engineering drawing. It gives data concerning measures and guidelines as notes and measurement. On a drawing, the entire of the composed data is consistently to lettering. It is not manually written. Likewise, it is very well might be added here. Lettering, अब इसमें lettering है, why it is necessary to learn why it is necessary to learn a lettering. The writing of alphabets A, B, C, D and 1, 2, 3, these things we have to mention in the drawing set. In previous classes, you have done dimensioning. So dimensioning consists of alphabets and numbers. And alphabets and numbers, अगर आप लिखोगे तो other person may not be able to read because of illegible writing. ओके कोई है टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, मोटा छोटा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स का, हर एक ह्यूमन बीइंग्स का हैंड राइटिंग इज डिफरेंट. तो ये ऑल द पीपल मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग डायमेंशनिंग नोट्स यू हैव रिटन ऑन द ड्राइंग शीट्स. सो अगर सबको यूनिफॉर्मली ऑल द पर्सन, अगर तुम्हें ड्राइंग को अंडरस्टैंड करनी है तो यू मस्ट फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर टू राइट. ओके, कुछ भी जो ड्राइंग शीट्स पे, बेटा मेरा आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम. ओके, नाउ ड्राइंग में जो लास्ट 2-3 क्लासेस में जैसे फ्री हैंड स्केचिंग किया, डायमेंशनिंग किया है, दोस क्लास में तुमने डायमेंशन लिखा होगा, उसके बारे में लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन का डिस्क्रिप्शन राइटिंग किया है. तो वो कुछ भी तुम ड्राइंग शीट पे जो भी लिखोगे, यूनिफॉर्म प्रोसीजर, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके, इफ यू राइट ऑन द ड्राइंग शीट, if you follow a particular procedure, then you will be able to draw or give a perfect drawing. तो इसमें lettering में there are 2 types of lettering is available, Gothic lettering and Roman lettering. First we will know about the single stroke letters. ये single stroke क्या है? Only one stroke पे, मतलब the thickness of the line, it must be done with a single stroke. Okay, ये standards है, Indian standards. This one gives the specification or procedure कैसे हमें lettering करना है. Indian standards 90691990. As per this procedure, we have to draw the write the lettering in the drawing sheets. Okay, now vertical letters are used for general purpose लेटरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट्स पे जो भी लिखोगे, राइटिंग में वर्ड्स लिखोगे, डायमेंशन लिखोगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, टाइटल ऑफ द ड्राइंग, these dimensions, the notes, all the things except drawing. ड्राइंग के अलावा जो भी तुम ड्राइंग शीट में लिखोगे तो you have to follow some procedure, ये कह रहे हैं. ओके, height to width ratio of such letter varies. ये height to width ratio क्या है? What is the height of the letter? What is the thickness of the letter? अब इसमें देखो, ये starts from here and end here. ओके, तो ये है thickness.
हॉरिजॉन्टली जो मेजर करेंगे अल्फाबेट्स का, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, सो दिस इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ द Good morning, ma'am. alphabet. Width of the alphabet. Okay, and what is the height of the alphabet? यहाँ से from this corner to this corner vertically. Okay, this is height of the alphabet. So height to width ratio, height to width ratio यहाँ पर लिखा है. तो ये इसमें जो technical lettering में we have to follow fixed height to width ratio uniformly throughout the sentence or words or notes. Okay, so height to width ratio we have to maintain in a drawing sheet. For all purpose, letters to height to width ratio may be taken as 7:5 or 6:5 for all capital letter except I, J, L, M and W. इसका थोड़ा वेरी होती है. For M and W, the suitable ratio will be 10:8. मतलब height of the letter will be 10, thickness, width of the letter will be 8. And for I, in this ratio is taken as 10:2. I लिखना है ड्राइंग शीट पे. देन हाइट, अगर तुम हाइट 10 mm सेलेक्ट कर रहे हो तो ये है आई यहाँ पर है ना. हाइट अगर 10 mm सेलेक्ट कर रहे हो उसका विड्थ 2 mm होना चाहिए. सो हर एक लेटर का एक प्रोसीजर हाइट टू विड्थ रेशियो वी हैव टू फॉलो. फॉर न्यूमरल्स सच रेशियो में बी टेकन एज, न्यूमरल्स मतलब क्या है, नंबर्स है. अगर नंबर लिखना है 30 mm, 40 mm, 50 mm, उसके लिए नंबर्स के लिए we may consider 7:4 रेशियो. मतलब 7 हाइट ये रखेगा, 4 पार्ट्स है विड्थ रखेगा. 6 आल्सो हाइट टू विड्थ रेशियो 3. ये है ये रेशियो किस लिए, नंबर्स जैसे 30 mm, 40 mm, 50 mm जो नंबर लिख रहे हैं, डायमेंशन लिख रहे हैं, उसके लिए हमें ये रेशियोस फॉलो करना है. नाउ सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड न्यूमरल्स आर शोन इन फिगर. वो नीचे डायग्राम पे शोन है. द इंक्लाइंड इटैलिक लेटर्स आल्सो रिटन. फर्स्ट हमें इसको ये कहते हैं सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग. सिंगल स्ट्रोक मीन्स ओनली वन स्ट्रोक पे यू आर राइटिंग इट. मतलब जो कोई बच्चे है ना इसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा डार्क लेटर्स दे विल राइट, ओवर राइटिंग जैसे थिकनेस विल बी ग्रेटर. वी शुड नॉट फॉलो इन सिंगल स्ट्रोक लेटर. सिंगल स्ट्रोक लेटर पे अभी यहाँ पर ये है फर्स्ट हमारी सिलेबस में ये गिवन है 7:5 रेशियो फॉलो करके लिखना है. ओके, अब 7:5 मीन्स क्या है, यहाँ पर देखो जो हाइट है ना, दिस हाइट है 14 mm, 20 mm. As per our syllabus, height of the letter we consider as 14 mm and 15 mm. Sorry, 14 mm and 20 mm. अब 14 mm क्या है, ये जो टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच का जो हाइट है 14 mm सेलेक्ट करना है. फर्स्ट तुम क्या करोगे, 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. 2 पैरेलल लाइंस के बीच का हाइट है 14 mm विल बी अवेलेबल. ओके, अब 7:4 या 7:5 रेशियो कैसे मेंटेन करना है. अगर हाइट ऑफ द लेटर, ओके, अल्फाबेट्स का जो हाइट ऑफ द लेटर अगर तुमने 14 mm कंसिडर किया है, मीन्स तुम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किया है. ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का जो हाइट है 14 mm. नाउ 7:5 रेशियो. ओके, 7 क्या है, ये हाइट 14 mm है ना. दिस 14 mm इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स. ओके, जो 14 mm हाइट है, अल्फाबेट्स का जो 14 mm हाइट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स. तो हर एक ईच पार्ट में यू विल गेट
2 mm पे जो छोटा छोटा हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ जैसे दिख रहा है ना, तो ये है उसका है 7 इक्वल पार्ट्स में 2 mm पे you have to draw the construction line. Okay, now 14 mm को अगर हम 7 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं तो one part will have 2 mm. अब विड्थ मैंने क्या कहा था, 5 बोला, 7:5 रेशियो पे. ओके, तो 5 into 2 करना है. वाई? ईच वर्टिकली हमने 14 mm को 7 इक्वल पार्ट्स में 2 mm ईच डिवाइड किया है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल में विड्थ पे तो जो विड्थ पे 2 mm into 5 रेशियो है, तो 5 into 2 10 mm. सो अल्फाबेट्स ए का विड्थ विल बी 10 mm, हाइट विल बी 14 mm. सो हमें एक फर्स्ट क्या करनी है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना है विद अ हाइट ऑफ 14 mm. हर अल्फाबेट्स का विड्थ रखोगे कितना, 5 into 2 10. ओके, सो 10 mm विड्थ हर अल्फाबेट्स का जो विड्थ है 10 mm रखोगे. हाइट 14 mm है, विड्थ 10 mm होना चाहिए. ओके, ये रेशियोस फॉलो करके अप टू Z तक तुम्हें राइट करना है. नेक्स्ट नंबर्स के लिए, ये नंबर्स क्या है, नंबर न्यूमरल्स के लिए 7:4 में भी फॉलोड लिखा है. तो अब 7:4 मतलब क्या है, ये नंबर्स 1 to 9 देन 0 ऑल्सो. 1 to 9 पे हमें क्या करना है, ये है 7:4 है ना, तो 7 हाइट 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे विद द हाइट ऑफ 14 mm, देन डिवाइड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स. कितना बनेगा, 2 mm पर आएगा. नाउ विड्थ कितना होना चाहिए, 4 पार्ट्स होना चाहिए, तो 4 into 2 8. सो ये इसका एक्सेप्ट 1 बाकी न्यूमरल्स का, तो 4 into 2 8 mm विड्थ होना चाहिए. न्यूमरल्स के लिए हाइट 14 mm, विड्थ 8 mm. अल्फाबेट्स के लिए हाइट 14 mm, विड्थ 10 mm. ये विड्थ 10 होना चाहिए, नंबर्स का 8 होना चाहिए. ओके, 2 पैरेलल लाइंस का बीच का जो वर्टिकल हाइट है दोनों को 14 mm, बट विड्थ अल्फाबेट्स के लिए 10 mm रखोगे, नंबर्स के लिए 8 mm रखोगे. ठीक है, ये है वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग. सिमिलरली अल्फाबेट्स में लोअर केस लेटर्स का आल्सो रेशियोस आर गिवन, उसका भी हमें A to Z फॉलो करनी है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग के लिए. सिमिलरली दिस वन इज कॉल्ड इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग. अब इंक्लाइंड में क्या डिफरेंस है, इसमें देखो ये है स्ट्रेटली जा रहा है 90 डिग्री सीधा ऊपर जा रहा है. इसमें 75 डिग्री वर्टिकल लाइंस, ऑल द वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन एट 75 डिग्री इंक्लिनेशन. अब 75 डिग्री किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. जो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 75 डिग्री इंक्लिनेशन लाइन, फर्स्ट हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है. उस रेक्टेंगल पे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके हाइट हमें 14 mm मेंटेन रखना है. बट जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वो 75 डिग्री इंक्लिनेशन पे ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम जैसे. ओके, अब फर्स्ट लाइन अगर 75 डिग्री लाइन पे तुमने ड्रॉ कर दिया तो बाद में ऑल द पार्ट्स उसको हम मिनी ड्राफ्टर यूज करके पैरेलल लाइंस 2 mm 2 mm 2 mm गैप में हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो उसमें है फर्स्ट ये है वर्टिकल लेटरिंग मींस सीधा 90 डिग्री वर्टिकल जाएगा. इंक्लाइंड लेटर पे 75 डिग्री इंक्लिनेशन पे हमें अगेन अल्फाबेट्स न्यूमरल्स अपर केस लेटर लोअर केस लेटर फॉलो करना है at an angle of 75 degree horizontal towards right direction. Okay, now inclined ये है inclined letters numbers को show कर रहा है. The size of the letter and numeral is specified by the height.
जो हाइट है h से मेंशन किया जाती है लेटरिंग में। द स्टैंडर्ड हाइट्स ऑफ लेटर एंड न्यूमरल्स, ये है 1.8 से लेके 14 mm 20 mm तक हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करती है। बट अभी प्रैक्टिस पर्पस के लिए तुम 1.8 mm 2.5 3.5 प्रैक्टिस पर्पस के लिए स्टार्टिंग में सेलेक्ट करोगे। यू मे नॉट बी एबल टू डिवाइड 7 इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स, बहुत छोटा नंबर है ना, उसको डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए अभी 14 mm and 20 mm को सेलेक्ट करके वी विल डू द प्रैक्टिस। 14 mm हाइट सेलेक्ट करोगे। ओके, फर्स्ट क्या करना है हमें, ये है इसका जो टू अल्फाबेट्स का जो हाइट है 14 mm रख के ये पूरा कंप्लीट करोगे। फिर अल्फाबेट्स का हाइट 20 mm रखोगे, 7 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स एंड 4 इक्वल पार्ट्स 20 mm हाइट पे। सो हमें एक्सरसाइज में जो ड्राइंग शीट्स में प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट क्या करोगे, ऑल द अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर, न्यूमरल्स तीनों को हाइट 14 mm रख के उसको करोगे। फिर 20 mm रख के 7 पार्ट्स 4 पार्ट्स इक्वल करके डिवाइड करनी है। ये हमारी प्रैक्टिस पर्पस के लिए शीट्स पे ये करना है। द लेटर साइज 5 mm to 10 mm may be used for मेन टाइटल ऑफ द ड्राइंग। हमें टेक्निकल लेटरिंग ABCD तो बचपन से सीख के आ रहे हैं, लिख रहे हैं। ओके, अभी आके क्यों हमें लर्न करना है, ड्राइंग शीट पे टाइटल ऑफ द ड्राइंग एंड जो भी लेटर्स लिखोगे तो वो लेजिबल होना चाहिए। तो वो लेजिबल के लिए यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करके लिखना है, सो दैट एनी वन कॉर्नर में जो ब्लूप्रिंट तैयार करेगा वो दूसरे कॉर्नर पे इंडस्ट्री में या कोई भी फैक्ट्रीज में ऑल द पर्सन्स में बी एबल टू रीड क्लियरली विदाउट एनी मिस्टेक। अगर समझ नहीं आया, गलत डायमेंशन अस्यूम करके मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो वो पार्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकता, डिफेक्ट पार्ट मान के उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो क्लियर हैंड राइटिंग, क्लियर राइटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें टेक्निकल लेटरिंग सीखना है। हाइट है जो टाइटल लिखने के लिए 5 mm 10 mm हाइट वी कैन सेलेक्ट। सब टाइटल के लिए जैसे हम जो टाइटल ब्लॉक में लिखते हैं ना, DSU पूसा कैंपस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए 5 mm to 10 mm हाइट पे रख सकता है। मान लो तुम 5 mm रख लो। सब टाइटल के लिए जो टाइटल का नेम लिखोगे ना, जैसे डायमेंशनिंग या टेक्निकल लेटरिंग, ऐसे टाइटल ऑफ द ड्राइंग लिखोगे, उसके लिए 3.5 mm हाइट पे 2 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके उस पे यूनिफॉर्मली कैपिटल लेटर पे लिखोगे। The letters and numerals having size of 2.5, 3.5 and 5 mm are suitable for writing notes. ये राइट नोट्स क्या होती है, जैसे ड्रिलिंग है 50 mm 40 mm डायमेंशंस लिख रहे हैं, उसके लिए 3.5 mm सेलेक्ट करो, सही लगेगा डायमेंशनिंग के लिए। The single stroke letter may be A type or B type. In A type letter में height of letter is divided into 14 parts, whereas B type letter में height is divided into 10 parts. The recommended ratio spacing letters, thickness of the line, मतलब इसमें देखो height तो बता दिया था, and with height to width ratio 7:5 हमें फॉलो करना है कैपिटल अपर केस राइटिंग लेटर के लिए। ना ये क्या होती है, ये इस डायमंड मतलब जैसे D एंड R के बीच में 2 लेटर्स के बीच में वी हैव टू लीव सम स्पेस। ओके, सिमिलरली 2 वर्ड्स के बीच में 2 लेटर वर्ड, ओके ये लेटर है ये वर्ड्स है, 2 वर्ड्स के बीच में ऑल्सो वी हैव टू कीप सम स्पेस, that is E. Now 1 के लिए जो 1 लिख रहे हैं उसका थिकनेस क्या है, 1 I L, ये सब के लिए D वैल्यू हमें फॉलो करना है। नाउ कुछ लेटर्स है जो लोअर केस लेटर में, ये D हो गया, Q हो गया, Y हो गया, these things नीचे भी सम डिस्टेंस तक वर्टिकली नीचे जाता है, उसके लिए C2 वैल्यू। अब ये CD का C2 सब का वैल्यू क्या है, मैं अभी नीचे आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, टेबल इज गिवन, टेबल देके बताऊंगी।
अब C2 वैल्यू इतना, C2 के हिसाब से दिस मच वी हैव टू, नीचे y को समवन विल राइट y बहुत लंबा नीचे तक ले जाता है, D है तो D का जो ये स्टेम है ऊपर बहुत ज्यादा दूर तक ले जाते हैं, Q का जो नीचे वाला स्टेम लॉन्ग, कोई लॉन्ग छोड़ेगा कोई छोटा लिखेगा, तो उसको हमें सम रेशियोस फॉलो करना है, जो भी है Q G Y उसका C2 वैल्यू नीचे रखना है, ये ऊपर कितना दूर जानी है इसका भी रेशियोस गिवन है, ठीक है। अब बेस लाइन से जो ऊपर जाएगा ये सब जो C2 B2 ये वैल्यूज है नीचे टेबल पे गिवन है। 1 मिनट, टेबल कहाँ चला गया, ओहो 1 minute, I have saved it, चला गया। मैम जो वैल्यू थी उसमें कितनी ब्रेक होनी चाहिए मैम? हाँ 1 मिनट बेटा, मैं टेबल को मिस हो गया, मैं एक्चुअली सेव किया था बट मिसिंग हो रहा था। आई विल शो इट टेबल, आई विल शो इट एक्सप्लेन टेबल। टेक्निकल लेटरिंग कौन सा में 37 पेज नंबर 37 में है। पेज नंबर 37। अभी कहाँ 17 में है, हाँ हाँ ये टेबल विजिबल है बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके ओके, अभी इस टेबल पे देखो, ये अगर आ रही है आवाज आ रही है। ओके, एक्चुअली आई वाज सर्चिंग माय PDF, ओके इसलिए थोड़ा सा साउंड बीच में कम हो गया होगा। अभी सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग का ये टेबल हमें फॉलो करना है। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग पे हाइट ऑफ द लेटर, ओके हम क्या, मैंने क्या बोला था, 14 mm फर्स्ट सेलेक्ट करोगे, ये वाला टेबल 14 mm। सो हाइट ऑफ द लेटर 14 mm सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये रेशियोस, यहाँ पर देखो रेशियो 14 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई h हम क्या ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं, तो 14 इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, 14 कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग 14 mm। सो अल्फाबेट्स का हाइट 14 mm रखोगे। हाइट ऑफ लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर का हाइट क्या है, C, हम C मानेंगे, हाइट ऑफ लोअर केस लेटर C मानेंगे, तो 14 डिवाइड बाई 10 बाई 14 इंटू, यहाँ पर लोअर केस लेटर का हाइट यहाँ 10 है ना, तो यहाँ पर इधर h की प्लेस में हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 10 बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 10, जो वैल्यूज हमें मिलेगा उतना हाइट पे हमें लोअर केस लेटर को ड्रॉ करनी है। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर, दो लेटर्स के बीच में हमें कितना मेंटेन करना है, 2/14 मल्टीप्लाई बाई h, जो h हम कितना ले रहे हैं
उसके हिसाब से अगर 14 मैंने तो बोला फर्स्ट 14 mm से ट्राई करोगे, तो 14 mm पे ट्राई करोगे तो लेटर्स का जो बिटवीन कैरेक्टर का 2 mm आएगा। ओके 14 सब्स्टिट्यूट करने से, तो वो 2 mm में 2 mm गैप छोड़ना है 2 लेटर्स के बीच में। ये मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन के लिए कितना रखना है 20 mm, मतलब अगर इधर 14 सब्स्टिट्यूट करोगे h की प्लेस में तो 20 mm प्लेस करना है बेस लाइन। वो ये बेस लाइन क्या होती है 2 लेटर्स के बीच में अल्फाबेट्स। ये देखो बेस लाइन ये है B। ओके मतलब फर्स्ट लाइन कर लिया है, ये सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन का जो बॉटम लाइन, सेकंड लाइन का बॉटम लाइन, दोनों का बीच का हाइट है B। सो उसका 20 mm रखना है। ये हाइट 14 mm लेनी है, हमें 14 mm लेनी है। ये E एंड N के बीच में 2 के बीच में ये कंसिडर करेंगे, तो ये में हमें ऊपर रेशियो के हिसाब से 2 mm आ रहा था। सो E एंड N के बीच में वी हैव टू मेंटेन 2 mm गैप, 2 mm गैप, 2 mm गैप हर एक लेटर का छोड़ के हम 2 mm गैप छोड़ के नेक्स्ट लेटर राइट करना है। जो फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, जो फर्स्ट लाइन बॉटम लाइन, सेकंड लाइन बॉटम लाइन, थर्ड लाइन बॉटम लाइन, हर एक लाइन के बीच में हमें 20 mm गैप छोड़ना है। अगर ये 20 mm है, हाइट 14 mm रख रहे हैं, तो गैप कितना बनेगा 6 mm गैप छोड़ के हमें नेक्स्ट लाइन पे ड्रॉ करना है। ओके ये है वो टेक्निकल लेटरिंग का है। ओके नेक्स्ट ये ई वैल्यू कितना है, मतलब 2 वर्ड्स के बीच में ई वैल्यू कितना होना चाहिए, डी वैल्यू आर का आई का कितना होना चाहिए, ऊपर टेबल पर गिवन है। ठीक है हमें ये देखो ई कितना रखनी है, डी कितना रखना है, थिकनेस ऑफ लाइंस, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, 2 वर्ड्स के बीच में कितना दूर रखना है ये। ओके ये वैल्यूज हमें ये रेशियोस कंसिडर करो। हाइट के लिए ये वाला टेबल पे ये कॉलम हमें हाइट के लिए कंसिडर करना होगा 14, 10, 2.8 ये सब। उसके बाद अगेन 20 mm कंसिडर करके ऑल द अल्फाबेट्स न्यूमरल्स अपर केस लोअर केस लेटर्स वर्टिकल एंड इंक्लाइंड हमें करना है। ओके यहाँ पर टेबल फॉलो करना है, ये है जो ये रेशियोस गिवन है इसके हिसाब से हमें ट्राई करना है। Okay, अब इसमें किसको डाउट है, दिस इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रोक लेटर। हमारी सिलेबस में डबल स्ट्रोक लेटर्स नॉट अवेलेबल, हमें इसको फॉलो नहीं करना है। हमें करनी है एक्सरसाइज पे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल एंड इंक्लाइंड करना है, अटैक हाइट ऑफ 14 mm 20 mm विद अ रेशियो ऑफ 7:5। ये हमारी सिलेबस है। ठीक है अब सभी क्या करोगे, अपना एक शीट्स ले लो, ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर करो, अदरवाइज स्केल यूज करो, स्केल पेंसिल लेके तुम अल्फाबेट सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग स्टार्ट करोगे। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग स्टार्ट करो। ये हाइट तुम 14 mm रखना है, 7 पार्ट्स, ये है 5 इक्वल पार्ट्स। ये करो, स्टार्ट करो। सर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड। सर है आप, सर है क्या बेटा ग्रुप में? सर हेलो हाँ हाँ सर मैंने बोल दिया, आप एक्सप्लेन करना तो कर दीजिए। आवाज नहीं निकालो मैडम, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर, ठीक हेलो है। हेलो यस सर सुन रही हूँ, बोलिए। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, लड़के सब आ गए हुए हैं क्लास में, तो हम इन लोगों को हैंड ऑन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ उनको बोल दीजिए 7:5 में 14 mm हाइट पे 20 mm हाइट पे करना है, 7:5 रेशियो पे।
हाँ as per लिख लो syllabus जो है मोहित 14 mm हाइट और 20 mm हाइट पर 7:4 के रेशियो में करना है। 7:5, 7:5। नहीं, आप सिलेबस में 7:4 है तो चलो 7:4 भी 7:5 दोनों में कर दीजिए। 7:5 भी दिया हुआ है 1 मिनट Syllabus मैं में? सिलेबस आपको एक बार दिखा लेती हूँ। हाँ निकाल के देखे तो 7:4 में है। हाँ 7:4 है, 7:4 फॉलो करो। विड्थ को 4 हाँ, टाइम्स 4 7:4 into 2 है। करनी है, 8 है। हाँ 14 और 20 का हाइट लेना है। हाँ हाइट 14 mm खाली- रखना है, विड्थ विल बी 4 into 2 8 mm और- लगेगा। सो 14 8 पे फर्स्ट करना है, फिर 20 लोअर केस mm के बारे में करके नहीं करो। बताया है, खाली कैपिटल लेटर के बारे में ही इंडिकेट किए हुए। हाँ सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग है। हाँ इंक्लाइंड भी है पर सेकंड स्टेशन में है, पर आप वर्टिकल लेटर का ही है और अपर केस है खाली। हाँ सर ठीक है। ओके, जो बच्चे ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं वो लोग घर पे एक व्हाइट शीट्स ले लो, या ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट पे ही स्टार्ट कर लो। ड्राइंग करके मुझे दिखा देना कैमरा ऑन करके। कितना स्टूडेंट्स ऑनलाइन में है? चलो मैम सुनो अराउंड क्या है बेटा? जी मैम 40 नहीं पार्ट वहां पर जो ऑफलाइन क्लास में है वो बच्चे भी ज्वाइन कर रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग है ना 7:4 रेशियो पे स्टार्ट कर लो अपर केस लेटर्स। जो ऑनलाइन में है वो कैमरा ऑन करके काम शुरू करो बेटा। मैंने कल बहुत सारा सेव किया था, अभी देख रही हूँ कुछ भी नहीं है यार, सारा मिसिंग हो गया। जो बच्चे ऑनलाइन में क्लास से अटेंड कर रहे हो वो लोग स्टार्ट कैमरा ऑन करके ड्राइंग करके मुझे दिखा दो बेटा। ये हाइट तुम्हें 14 mm रखना है, 2 पैरेलल लाइंस का बीच का हाइट 14 mm, विड्थ मस्ट बी 8 mm। 7 पार्ट्स है 2 2, तो वो 2 के हिसाब से तुम्हें विड्थ 8 बनेगा। सो 14 into 8 विड्थ में सारा काम शुरू करो। कैमरा ऑन करो बेटा। 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक को आपको आज बनाना है। पहला 14 हाइट रखना है, 14 आपने रखना है। अब हम बता रहे हैं सुनो, 14 हाइट रखना है और दूसरा जो है 30 हाइट रखना है। हाँ 20 का रखना सर, हाइट ये हाइट लेना है, ये रखनी है सब। और पहला एक सेट तक के और 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ये 14 हाइट पर बनेगा यूनिट पर, और वही चीज हाइट पर दोनों पे बनाना है। वर्टिकल में बना दो बार बने। एक बात और बताओ, एक बात सर, एक बात कि चौड़ाई हमको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप आवाज सुनने की कोशिश करो। हमने आपका क्वेश्चन में
सिलेबस में 7:4 के रेशियो में बनाना है। किसमें बनाना है? 7:4 के रेशियो में बनाना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका 7 जो है हाइट को डिनोट करेगा और 4 जो है विड्थ को डिनोट करेगा, पर इसको ट्रांसफर किस पर करना है? 14 पर। किस पर करना है? 14 पर। तो पहले 2 लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेना, 2 लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेना। कितनी चौड़ाई को? अबे 14 mm पर 2 पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेना, 2 पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेना। 2 पैरेलल लाइन कहाँ है? कितना हाइट है? 14 है। ठीक करेगा तो समझ में आ गया। अब इस 14 हाइट को 7 भाग में डिवाइड करना है। हाँ, 7 में पहले डिवाइड करना है। ये हाइट को कितने में डिवाइड करना है? 7 भाग में डिवाइड करना है। गैप को कितने भाग में करना है? 7 भाग में। मेरी ये बताओ चौड़ाई कितनी रहेगी? चौड़ाई विड्थ होता है। अभी हम हाइट को बोल रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट नहीं हो जाएगा। कितने भाग में बच गया? 7 भाग। समझ में आ गया? अब 4 है, 4 है तो आपका 4 का कितना आएगा? कितना में देना है? 4 दूनी 8 mm ही होगा। कितना mm का होगा? 2 mm का वर्टिकल लाइन चली आइएगा इस तरह से, ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ गया? ग्राफ बना दिया हमने। वर्टिकल लाइन खींच के 2 mm का और 7 mm का खींच लिए। इस तरह से बढ़ते चले जाइएगा। अब इसमें क्या करना है? जो भी लेटर है पहले आप ये समझिए कि सिंगल स्ट्रोक का मीनिंग क्या होता है। एक बार कहीं से पेंसिल उठाए हैं तो अगर वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, आवाज नहीं निकलना चाहिए। अगर वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो टॉप से बॉटम की ओर आना होगा, अर्थात कहने का क्या हो गया? ऊपर से नीचे की ओर आना होगा। पेंसिल का नॉक कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे, टॉप पर यहाँ पर रखेंगे और बॉटम तक ले जाएगा। समझ में आया? मैम 2 लेटर के बीच में डिस्टेंस कितना था? वर्टिकल लाइन या जो भी है। अच्छा, दूसरी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप खींचने की आवश्यकता हो गई। हाँ सॉरी बोलो। 2 लेटर के बीच में, 2 अल्फाबेट के बीच में कौन कितना गैप? 2 mm बेटा, 2 mm रखना है। लेफ्ट टू राइट खींचिएगा, लेफ्ट हैंड से 2 mm रखना है। राइट हैंड साइड। समझ आया ना? अर्थात इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। एक बार में पूरी खींचिएगा। हाँ, इधर से नहीं, इधर से। हाँ, एक ही बार। क्या है?
सर